مووی کی سٹارٹنگ ہوتی ہے اور ہمیں ایک کچن دکھایا جاتا ہے جہاں پہ بہت سارے سٹاف کام کر رہے ہوتے ہیں اور مینیجر آ کے سب کچھ چیک کر رہا ہوتا ہے۔ سین یہاں سے کٹ کر دیا جاتا ہے۔ اگلے سین میں ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے گوری۔ وہ اٹھ کے سامنے دیکھتے ہیں، اس کے سامنے ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ بوڑھے آدمی کے پاس آتے اور پوچھتے ہیں ہم کہاں ہیں۔ اس پر اسے بوڑھا آدمی کہتا ہے کہ ہم ایک جیل میں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بوڑھا آدمی اسے بتاتا ہے کہ ہم اوپر والوں کا بچا ہوا کھانا کھائیں گے۔ آدمی وہاں سے اٹھ کر پہلے نیچے کی طرف دیکھتا ہے اور پھر اس کے بعد اوپر کی طرف دیکھتا ہے۔ پھر وہ آدمی بوڑھے آدمی کے ساتھ ہاتھ ملانے کی کوشش کرتا ہے اور اسے اپنا نام گوری بتاتا ہے۔ وہ اسے منع کر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ پیچھے جاؤ، اپنی طرف رہو۔ وہ بوڑھے آدمی سے اس جگہ کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ جگہ کس طرح کام کرتی ہے۔ اس پر اسے بوڑھا آدمی بتاتا ہے کہ تمہارے لیے نیچے رہنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ بوڑھا آدمی اسے بتاتا ہے کہ یہاں پہ رہنا کبھی کبھی آسان ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ سب تمہارے لیول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر تمہارا لیول کم ہوا تو تمہیں اچھا کھانا ملے گا، لیکن اگر تمہارا لیول زیادہ ہوا تو تم تک کھانا نہیں پہنچ پائے گا۔ بوڑھا آدمی اسے بتاتا ہے کہ خوش قسمتی سے 48 لیول کے حالات بہت اچھے ہیں۔ پھر اسے بوڑھا آدمی بولتا ہے کہ ہم یہاں اس لیول پہ پورے 1 مہینے تک رہیں گے۔ بوڑھا آدمی اسے بتاتا ہے کہ اب میں تمہارے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ روم کی ریڈ لائٹ آف ہو جاتی ہے اور گرین لائٹ آن ہو جاتی ہے، جس پر وہ آدمی بوڑھے سے پوچھتا ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اوپر روم کی طرف سے ان کی طرف کھانا آ جاتا ہے اور بوڑھا آدمی جلدی جلدی کھانے لگ جاتا ہے۔ وہ آدمی اس بوڑھے آدمی سے کہتا ہے کہ اس کھانے کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ پہلے کسی نے کھایا ہوا ہے۔ اس پر اسے بوڑھا آدمی بتاتا ہے کہ ہمارے اوپر 47 لیول اور ہے۔ یہ کھانا انہی لوگوں کے پاس سے آ رہا ہے اور لگتا ہے اوپر والے سارے مسلمان ہیں کیونکہ یہاں تک شراب نہیں پہنچتی۔ بوڑھا آدمی اس سے پوچھتا ہے کیا تم کھانا نہیں کھاؤ گے؟ اس کے بعد وہ آدمی جاتا ہے اور وہاں سے ایک سیب اٹھا لیتا ہے اور بولتا ہے کہ اسے میں بعد میں کھا لوں گا۔ وہ آدمی بوڑھے آدمی سے پوچھتا ہے کیا تمہیں گرمی نہیں لگ رہی ہے؟ وہ بوڑھا آدمی سے کہتا ہے وہ ٹمپریچر بڑھا رہے ہیں۔ تو اس پر وہ آدمی پوچھتا ہے ایسا وہ کیوں کر رہے ہیں؟ بوڑھا آدمی سے بتاتا ہے کہ تمہاری وجہ سے۔ پھر وہ پوچھتا ہے کہ میری وجہ سے کیسے؟ بوڑھا آدمی اسے بتاتا ہے کہ کھانا تب تک صرف ہمارا ہوتا ہے جب تک وہ ہمارے پلیٹ فارم پہ ہو۔ اگر تم کوئی چیز بعد میں کھانے کے لیے رکھو گے تو وہ تمہیں ٹمپریچر بڑھا کر گرمی کی وجہ سے جلا دیں گے اور یا سردی کی وجہ سے فریز کر دیں گے، جس پر وہ آدمی سیب پھینک دیتا ہے۔ پھر وہ آدمی اس بوڑھے آدمی کو بولتا ہے کہ میں یہاں اپنی مرضی سے آیا ہوں، میں یہاں سگریٹ چھوڑنے آیا ہوں۔ تم مجھے اپنی وجہ بتاؤ، تم کس وجہ سے یہاں پر آئے ہو؟ بوڑھا آدمی اسے بتاتا ہے کہ میں نے ایک قتل کیا ہے جس کی وجہ سے میں یہاں 1 سال رہوں گا۔ وہ دونوں سو رہے ہوتے ہیں کہ اچانک ان کے کمرے میں ریڈ لائٹ جلنے لگتی ہے۔ وہ آدمی جلدی سے اس طرف جاتا ہے جس طرح سے انہیں کھانا ملا تھا۔ تو بوڑھا آدمی اسے کہتا ہے کہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں وہاں سے پیچھے ہٹ جاتا۔ تبھی اچانک ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کوئی چیز اوپر کی طرف بہت سپیڈ سے گئی۔ دونوں واپس سے سو جاتے ہیں اور ہمیں صبح کا سین دکھایا جاتا ہے جس میں پھر سے ان کے کمرے میں لائٹ جلتی ہے اور بوڑھا آدمی کھانا کھانے لگ جاتا ہے۔ بوڑھا آدمی اس آدمی سے پوچھتا ہے کہ تم کھانا نہیں کھاؤ گے؟ وہ اسے بولتا ہے کہ یہ کھانا میں نہیں کھاؤں گا۔ اس کے بعد بوڑھا آدمی اسے بولتا ہے کہ تم اس لیول کے لائق ہی نہیں ہو، جس پر ان سے کھانا واپس چلا جاتا ہے نیچے کی طرف اور بوڑھا آدمی اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر وہ آدمی بوڑھے آدمی کو بتاتا ہے کہ میں اپنے ساتھ ایک کتاب لایا ہوں اور تم اپنے ساتھ کیا لائے ہو؟ جس پر بوڑھا آدمی اسے
चाकू निकाल कर दिखाता है और बोलता है कि मैं अपने साथ ये लेकर आया हूँ। फिर से ग्रीन लाइट ऑन होती है और उनके पास खाना आ जाता है। बूढ़ा आदमी तेजी से खाना खा रहा होता है। इस बार वो आदमी भी खाना खाने आ जाता है, क्योंकि 3 दिनों से इसने कुछ नहीं खाया होता है। इस वजह से इसे भूख लग जाती है और वो भी बूढ़े आदमी के साथ बैठकर खाना खाने लगता है। बूढ़ा आदमी ऊपर की तरफ देखता है और खाना फिर से आने लगता है। बूढ़ा आदमी उठकर खाने की तरफ जाता है और देखता है कि सामने टेबल पे एक लड़की भी ऊपर की तरफ से आई होती है। वो आदमी उससे पूछता है कि ये लड़की कौन है। बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि ये लड़की अपने बेटे को ढूंढ रही है। वो आदमी उसे हाथ लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पीछे हट जाती है। बूढ़ा आदमी खाना खाने लगता है और फिर वो आदमी बूढ़े आदमी से पूछता है कि क्या यहाँ पर बच्चे भी रहते हैं। तो इस पर बूढ़ा आदमी उससे बोलता है कि मुझे नहीं पता। वो आदमी इस औरत से पूछता है क्या तुम ठीक हो। फिर खाना नीचे की तरफ जाने लगता है और उसके साथ वो लड़की भी नीचे जाने लगती है। वो उसे देख रहा होता है। नीचे वाली फ्लोर में जो आदमी होते हैं वो दोनों इस लड़की को पकड़ लेते हैं और दूसरी तरफ खींच लेते हैं। वो आदमी उसे देख रहा होता है और उस पर चीख रहा होता है कि छोड़ो उस लड़की को। इससे लगता है कि वो दोनों आदमी इस लड़की के साथ कुछ गलत कर लेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की वहाँ से वापस आ जाती है और उसके हाथों पे बहुत खून लगा होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इस लड़की ने उन दोनों आदमियों को मार दिया है। बूढ़ा आदमी से पूछता है क्या तुम्हें किसी चीज़ की स्मेल आ रही है। तो वो आदमी उसे कहता है नहीं, किस चीज़ की स्मेल है। बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि गैस की स्मेल आ रही है। वो लोग अभी हमें बेहोश करने वाले हैं और अगले रूम में भेजने वाले हैं। कहता है कि तुम्हें हमारे लिए दुआ करनी चाहिए कि अगले कमरे में हम दोनों एक साथ हों, क्योंकि तुम मुझे पसंद आ गए हो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। और जब उस आदमी की आँख खुलती है तो वो देखता है कि उस बूढ़े आदमी ने उसे बांध कर रखा हुआ है। बूढ़ा आदमी उसके पास आता है और उसे बताता है कि अब हम 171 लेवल पे हैं, जो कि अच्छी जगह नहीं है। बूढ़ा आदमी उस आदमी को बताता है कि हमें यहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से हम एक दूसरे को मारेंगे। मैं बूढ़ा हूँ, इस वजह से मैंने तुम्हें बांध के रख दिया ताकि मैं तुम्हें आराम से मार सकूँ। बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि घबराओ नहीं, मैं तुम्हें जल्दी नहीं मारूंगा, क्योंकि 1 हफ्ते तक मैं भूखा रह सकता हूँ। मैंने ये पहले भी किया है। उसके बाद मैं तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता मारूंगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वही टेबल फिर से इनके पास आता है, लेकिन इस बार उस पर कुछ भी नहीं था खाने के लिए, क्योंकि इनका लेवल काफ़ी ज़्यादा हो गया था और ऊपर वाले लोगों ने सब कुछ ख़त्म कर दिया था। 1 हफ्ता गुजर जाता है और बूढ़ा आदमी उसके पास आता है और उसे कहता है कि चलो अब शुरू करते हैं। उसका मुंह बांध देता है और उसके बाद वो उसकी टांग से कपड़ा हटाता है और वहाँ से एक छोटा सा गोश्त का टुकड़ा अलग करके खाने लगता है। लेकिन अचानक हमें वही आवाज़ फिर से सुनाई देती है और ऊपर से वो टेबल वापस नीचे की तरफ आने लगता है, जिस पर वो लड़की भी बैठी होती है जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाई जाती है। वो लड़की जल्दी से उतरती है और उस बूढ़े आदमी के सर पे मारती है और उसे बेहोश कर देती है। फिर वो उठती है और उसे चाकू से मारती है। इसके बाद वो उस आदमी को छुड़ाकर उसे चाकू दे देती है, जिससे वो आदमी उस बूढ़े आदमी को मार देता है। कुछ दिन बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का एक नए कमरे में आ गया है और एक नए लेवल पर पहुंच गया है,
जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फिर से ऊपर से खाना आता है और हमें ये भी पता चलता है कि अब ये 33 लेवल पर है और उससे बहुत ही अच्छा खाना मिलता है और वो खाना खाने बैठ जाता है। फिर हम देखते हैं कि ऊपर से इनकी तरफ खाना आ रहा होता है और उस टेबल पे वो लड़की भी लेटी होती है जिस लड़की ने इस लड़के की जान बचाई थी, और वो देखता है कि वो बीमार है तो वो उसे उठाकर जल्दी से बेड पर सुला देता है। लड़की लड़के को बताती है कि मुझे सर्दी लग रही है। लड़का जब देखता है तो उस कुत्ते ने कुछ खाने के लिए अपने साथ रखा होता है जिसकी वजह से टेम्परेचर कम होता है और उन्हें वहाँ पे सर्दी लगती है। वो उसे गोश्त लेकर नीचे फेंक देता है। उनके पास खाना आता है लेकिन उसमें ऊपर वालों ने कुछ भी नहीं छोड़ा होता है, जिसके बाद वो आदमी उस लड़की को बोलता है कि पता नहीं हम कल किस लेवल पे होंगे, जिसका मतलब है कि उसका लेवल फिर से बदलने वाला है। हमें दीवार पे 202 दिखाई देता है जिसका मतलब है कि अब वो 202 लेवल पर है। फिर हमें टेबल दिखाई देता है लेकिन उस पे खाना बिल्कुल नहीं होता है। इस लेवल तक खाना पहुंचना बहुत मुश्किल था, जिसकी वजह से वो अपने साथ जो बुक लाया होता है उससे पेज फाड़ कर खाने लग जाता है। फिर वो बेहोश हो जाता है और अगले रोज़ हमें दिखाया जाता है कि वो अब एक नए लेवल पर पहुंच गया है। जैसे वो देखता है सामने लिखा होता है 6 नंबर, मतलब कि अब ये 6 लेवल पर है। फिर हमें दिखाई देता है कि उसका साथी ऊपर जाने के लिए ऊपर वालों से हेल्प मांगता है, लेकिन वो लोग इसकी हेल्प नहीं करते। इसके बाद हम देखते हैं कि इनके पास खाना आता है जो कि बहुत अच्छी हालत में होता है, क्योंकि इनका लेवल बहुत कम था इसलिए इन्हें अच्छा खाना मिल रहा था। और आदमी बैठ जाता है, खाने लगता है और दूसरे से पूछते हैं क्या तुम खाना नहीं खाओगे, तो वो खाना खाने से इनकार कर देता है। वो इसकी तरफ एक सेब फेंकता है और वो उसे पकड़कर खाने लगता है। वो दोनों बैठते हैं और इस जेल से निकलने के बारे में सोचते हैं, तो उसका दोस्त उसे बोलता है कि हमें तो ये भी नहीं पता कि ये कितने लेवल का है। तो इस पर दूसरा आदमी उसे बताता है कि जब मैं 202 लेवल पे था तो मैंने काउंट किया है, यहाँ पर तकरीबन 250 लेवल हैं। तो ये आदमी उसे कहता है कि अगर हम 250 लेवल पर खाना सही सलामत ले गए तो शायद हम यहाँ से निकल सकते हैं। इसके बाद दोनों अपने लिए हथियार बनाते हैं और उस खाने के ऊपर खड़े हो जाते हैं। वो दोनों किसी को भी खाना खाने नहीं देते हैं, सबको बोलते हैं कि हमें खाना आखिरी लेवल तक पहुंचाना है। खाना तो वो दोनों नीचे तक ले आते हैं लेकिन लेवल ख़त्म नहीं होते, जिसके बाद हमें दिखाई देता है कि 333 लेवल हो गए लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं हुए। वो आदमी उसे उठाता है और उसे बताता है कि हम आखिरी लेवल पर पहुंच गए। जिसके बाद वो उठता है और वो उसे बताते हैं कि तैयार रहो, अब हम ऊपर जाने वाले हैं। तभी वो नीचे की तरफ देखता है जहाँ पर छोटी बच्ची बैठी होती है। वो उतरकर उस छोटी बच्ची के पास जाता है लेकिन उसका दोस्त उसे मना करता है जाने से। वो अपने दोस्त को बोलता है कि उस बच्ची को भूख लगी है, ये खाना उस बच्ची को दे दो। वो बच्ची वो खाना खा रही होती है। इन दोनों ने आखिरी लेवल तक खाना पहुंचा दिया, जिसके बाद ये दोनों आज़ाद हो जाते हैं और ये